Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools Syed Ahmed Khan campuses and Gulistani Johar campus. In this video, I will explain you about organs, organ systems, unicellular organisms and multicellular organism. And the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. Review of previous class. In previous class I explained you about the tissue and I explain you in detail about the types of animals and plant tissue. बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे होते हैं. उसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया. प्लांट टिश्यू के बारे में बताया कि प्लांट में आपके पास बायोस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू है. उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ की मज़ीद टाइप्स थी. एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के थे. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स टुडे टॉपिक, दैट इज़ organs. Your arm is an organ because it consists of various kinds of tissues such as epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. All of these tissues have come together in the arm to make it an organ. आपका जो आर्म है वो एक ऑर्गन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ के टिश्यूज़ मौजूद है, लाइक एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, नर्वस. ये टिश्यूज़ आपस में मिल के जो है वो आपका आर्म बना रहे हैं और आपका आर्म इस तरह से एक ऑर्गन बन रहा है क्योंकि जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं दे विल मेक एन ऑर्गन. Your heart, kidney, liver and many other structures are organ made in the same way. इसी तरह से हार्ट, किडनी, लिवर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब ऑर्गन्स हैं और इसी तरह से बनने में कि उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो आपस में कंबाइन हुए हैं. Similarly, in a plant, the root, the stem and the leaves are organs. For example, the stem consists of several tissues such as epidermal tissue, ground tissue and conducting tissue. Organ system. An organ system is a group of organs that work together to perform one or more functions. जब ऑर्गन्स आपस में मिल के काम करें, एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करें तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. Example, the digestive system is made of organs such as mouth, gut, liver and pancreas are all working together to digest food. There are other systems in the animal body such as transport, respiratory, excretory, muscle, skeletal, nervous and reproductive systems. ठीक है, एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ, गट, लिवर, पैनक्रियास इन सब से मिलके बना हुआ है और इन सब का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना. इसके अलावा एनिमल की बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे सिस्टम है, लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. In plants also the tissues and organs, root, stem and leaves are organized to form system. However, the systems here are not so clearly organized as in the animals. It is usual to study these in plant as conduction, storage, supporting systems और root and shoot system. Plants के अंदर भी यही हो रहा है कि tissues और organs जो हैं वो अपने आप को organize करके system बना रहे हैं, but यहाँ पर इतना ज़्यादा organize नहीं हुआ हुआ system जैसे कि animals में हुआ हुआ है. Plant में अगर देखा जाए तो as a conduction, storage, supporting system और रूट और शूट सिस्टम आपको सुनने में आते हैं. In this chapter, you are studying life at various levels of organization from the simplest to the most complex. इस चैप्टर में आप लाइफ को स्टडी कर रहे हैं और उसके डिफरेंट लेवल्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से आपको सिंपल लेवल भी दिखाया जाएगा और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल भी दिखाया जाएगा. एक सिंपल डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ जिससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा. लाइक दिस, ये सेल्स are combined to form tissues, tissues combine to form organs, organs combines to form systems and system combines to form a complete organ. Unicellular organisms. A unicellular organism is an organism that consists of a single cell. This means all life processes such as reproduction, feeding, digestion and excretion occur in one cell. Unicellular organism वो organism कहलाते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हों. इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब जो है ये एक ही सेल के अंदर हो रहा होगा. इसमें एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो अमीबा है. अमीबा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. सम अदर एग्जाम्पल्स आर यूग्लिना, पैरामीशियम एट्सेट्रा. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म.
The majority of living organisms consist of many cells and are called multicellular organism. मल्टी सेल्यूलर यानी एक से ज़्यादा सेल, और मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी इनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, उनको मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है. ब्रासिका एंड फ्रॉग हैव बीन सिलेक्टेड हियर एज रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल में ब्रासिका एज अ प्लांट एंड फ्रॉग एज एन एनिमल फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. पहले हम थोड़ा सा अमीबा को डिस्कस करते हैं एज ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. Characteristics of amoeba. It is a unicellular aquatic organism found in stagnant water pools and pond. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल होता है. कहाँ पाया जाता है? जो खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पे, पूल्स में या पॉन्ड्स में. इट इज़ माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मेजरिंग अबाउट 0.25 मिलीमीटर. बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, और इसका जो साइज़ है यानी वो कितना है? 0.25 मिलीमीटर. इट डज़ नॉट possess a permanent form and keeps on changing its shape. इसकी फॉर्म एक परमानेंट नहीं है, ये अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहता है. The structure of amoeba is very simple. The nucleus and cytoplasm are surrounded by a protective cell membrane. अमीबा का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो उसके आसपास जो है वो एक प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन मौजूद है. साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स. द कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स फंक्शन टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी. साइटोप्लाज्म को जो है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, और एक कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल मौजूद होता है. इसका काम क्या होता है? इसकी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करना. द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड पार्टिकल. एक फूड वैक्यूल भी होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल होते हैं. The animals move by producing temporary finger-like projections called pseudopodia. ये किस तरह से मूव कर रहा होता है? इसकी पूरी बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है, और उसकी हेल्प से ये मूव कर रहा होता है. द सूडोपोडिया आर ऑल्सो यूज टू कैप्चर फूड पार्टिकल. इसके अलावा फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए भी सूडोपोडिया का ये यूज़ कर रहा होता है. अमीबा रिस्पायर्स बाय एक्सचेंजिंग गैसेज विद द सराउंडिंग वाटर थ्रू इट्स सरफेस. अमीबा किस तरह से गैसेज एक्सचेंज करता है? जो उसके आसपास वाटर है उससे करता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स सरफेस. Here is the picture of amoeba. You can see that बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है आपको, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसकी सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको आप सूडोपोडिया कहते हैं, जो उसको जो है मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं और फूड को ग्रैब करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं. नाउ ब्रासिका. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड यानी सरसों. ब्रासिका जो है बॉटनिकल नेम है मस्टर्ड का, जिसको उर्दू में सरसों कहा जाता है. इट्स ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, और जो इसके लीव्स हैं वो एज ए वेजिटेबल यूज़ किए जाते हैं जिसको आप साग कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका. दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड. The parts can be divided into 2 categories on functional basis, vegetative part and reproductive part. Plant के पास root, stem, leaf, flower, fruit और seeds हैं. ठीक है, इन parts को divide किया गया है 2 categories में, vegetative और reproductive. The vegetative parts are those which do not directly take part in sexual reproduction. Vegetative part वो हैं जो कि sexual reproduction में directly participate नहीं कर रहे, जैसे कि root, stem, branches और leaves हो गए. और reproductive part consists of sex organs which are directly related to sexual reproduction. These are flowers. The flowers are basically the reproductive part of brassica. Here is a picture of brassica plant. Vegetative parts of brassica. The vegetative parts of brassica are root, stem, leaves. Now let's talk about the root. The root is that part which grows under the soil and develops from the radicle of the seed. रूट वो पार्ट है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है, और सीड का एक पार्ट इसको रेडिकल कहते हैं, वहाँ से ग्रो करना शुरू करता है. जितनी भी रूट की टिप्स हैं उस पर कैप मौजूद होता है जिसको रूट कैप कहते हैं. इसके अलावा रूट पे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है. रूट का काम क्या है? सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. बाकी जो है
रूट हेयर्स के अलावा जो पार्ट है रूट का वो क्या काम कर रहा होता है, प्लांट उसको जो है वो सॉइल में फिक्स रखने के लिए हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी जो फिक्स करने का काम है वो रूट के बाकी पार्ट्स जो हैं वो प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का काम कर रहे होते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ अ रूट इज़ द एपिडर्मिस विच प्रोटेक्ट्स द रूट। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, इसका काम है रूट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज द कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के फ़ौरन बाद कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स इज कम्पोज ऑफ पैरेन्काइमस सेल्स। Parenchymal cells store food material within the cortex is a central cylinder region called the stele. The stele of the root is surrounded on the outside by a layer of cells called endodermis. Next to the endodermis is a layer of cells called pericycle. Branch of the root originate from the pericycle. The central part of the stele is occupied by a star-shaped xylem. In between the arms of the xylem is phloem. Rest of the stele is made up of a parenchymus cell. ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर था पूरा रूट का कि रूट की जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रांसफर सेक्शन है वो किस तरह से बना हुआ है। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ तो आपको ये जो नेम्स बोल्ड हुए हैं ये सारे लेबल हुए हैं और आपके पास एग्ज़ाम में इसकी डायग्राम आती है ड्रॉ करने के लिए। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ टीएस ऑफ रूट ऑफ ब्रासिका। यू कैन सी दैट सबसे ऊपर रूट हेयर है, उसके ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के फ़ौरन नीचे कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद जो कॉर्टेक्स आपको पता है वो पैरेन्काइमस सेल से बनी हुई होती है। उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर फ्लोएम है, स्टार शेप जाइलम मौजूद है, सेंटर में पिद है। तो ये आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा बजाय कि सिर्फ सर्कल है, जबकि ऐसा नहीं है। डिफरेंट साइजेस के ये जो है वो सेल्स बने हुए हैं जिसको आपको जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए विद द लेबलिंग। लाइक फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है। लेबल याद करते करते आप जो है इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम है ब्रासिका की, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। लाइक नंबर 1 इज़ एपिडर्मिस। क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रासिका स्टेम शोज दैट इट इज़ सराउंडिंग ऑन द आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें ब्रासिका स्टेम का तो उसमें दिखाया जा रहा है कि स्टेम के ऊपर एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस मौजूद है। Next to the epidermis is cortex. The cortex is made up of parenchyma and collenchyma cells. Food material is stored in the cortex. Epidermis के फ़ौरन बाद cortex मौजूद है जो कि बनी हुई है parenchyma and collenchyma cell की। इसका काम है फूड स्टोरेज का। उसके बाद वस्कुलर बंडल है, एक रिंग मौजूद है cortex के बाद वस्कुलर बंडल का। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। जाइलम जो है वो अंदर की साइड है और फ्लोएम जो है वो बाहर की साइड। Cambium. In between xylem and phloem there is a region consist of meristematic cells called cambium. जाइलम और फ्लोएम के दरमियान एक रीजन है जिसको कैम्बियम कहा जा रहा है। उसके बाद पिद है जो कि सेंटर है स्टेम की। ये पैरेन्काइमा सेल की बनी हुई है और उसका काम फूड मटेरियल स्टोर करना है। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। आप देख सकते हैं लेबलिंग इसकी। सबसे पहले एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, वस्कुलर बंडल है, उसमें आपके पास जो है वो जाइलम फ्लोएम आ रहे हैं और सेंटर में पिद है। बेसिकली ये पूरा राउंड होता है, इसको हमने एक ट्राइंगल शेप काट के आपको दिखाया हुआ है, जबकि ये पूरा एक राउंड शेप में जो है वो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है। Now let's come towards the parts of the flower. The flower in Brassica is situated on a stalk known as pedicel. The tip of pedicel is flattened is known as thalamus. जो ब्रासिका का फ्लावर है वो जहाँ पे लगा हुआ होता है जिस पार्ट पे उसको पेडिसल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पेडिसल की जो टिप है वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है, उसको थैलेमस कहा जाता है। देयर आर वॉल्स ऑफ फ्लावर। 4 वॉल्स हैं ब्रासिका फ्लावर की। नंबर 1 कैलेक्स, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंड्रोशियम एंड नंबर 4 गाइनोशियम। दीज आर द 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर। Number 1 is calyx. This is the outermost wall and consists of 4 free sepal and green in color. Sepals are collectively called as calyx. ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है outermost wall कहा जाती है। 4 free sepals होते हैं ग्रीन कलर के और उनको आपस में कंबाइन करके calyx कहा जाता है।
कैलिक्स का काम क्या है? कैलिक्स कवर द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सनलाइट एंड रेन। जो इनर पार्ट है फ्लावर का उसको कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है किसी सनलाइट और रेन से। करोला, द सेकेंड वॉल कंपोज्ड ऑफ 4 फ्री येलो पेटल्स एंड इज कलेक्टिवली कॉल्ड इज कोरोला। जो सेकेंड वॉल है वो बनी हुई है 4 फ्री येलो पेटल्स की और उसको करोला कहा जाता है। व्हाट इज दिस फंक्शन? ड्यू टू ब्राइट येलो कलर इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड एंड दस हेल्प इन पॉलिनेशन। इसके ब्राइट कलर की वजह से इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एंड्रोशियम, it is a third wall and is called the male reproductive part of the flower। ये थर्ड वॉल है, उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 6 फ्री स्टैमिन अरेंज इन 2 सर्कल। द आउटर सर्कल हैज़ 2 स्मॉल स्टैमिन, द इनर सर्कल हैज़ 4 लॉन्ग स्टैमिन। अगर एंड्रोशियम की बात की जाए तो इसके पास 6 स्टैमिन्स होते हैं जो कि 2 सर्कल में अरेंज हुए हुए होते हैं। बाहर वाला जो सर्कल है उसमें 2 स्मॉल स्टैमिन है और अंदर वाले में जो है वो 4 लॉन्ग स्टैमिन होते हैं। हर स्टैमिन के 2 वेल डिफाइंड पार्ट हैं, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है वो ऊपर का सोलन पार्ट है, उसको एंथर कहा जाता है। एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और फिलामेंट क्या है? एक स्टॉक है जो कि एंथर के नीचे से जारी होती है, दैट इज़ फिलामेंट। Anther produces pollen grain which is transformed from anther to stigma and thus pollination takes place। anther का क्या काम है? वो pollen grain प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा और वहाँ पे pollination स्टार्ट हो जाता है। Gynoecium, it is the 4th wall and occupies the center position of the flower। The parts of the gynoecium are called carpels who are the female reproductive organ of the plant। ये 4th वॉल है और ये फ्लावर के सेंटर में मौजूद होती है। जो गायनोशियम के पार्ट में कार्पल्स कहा जाता है जो कि बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। इन ब्रासिका गायनोशियम इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 कार्पल्स। ब्रासिका के अंदर जो गायनोशियम फॉर्म हो रहा है वो 2 कार्पल्स से मिलकर बन रहा है एंड ईच कार्पल इज डिविजिबल इनटू 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 ओवरी। Stigma is the upper swollen tip called stigma. From the stigma, a thin stalk-like portion extends downwards called style. The lower swollen part of the carpel is called ovary. सबसे ऊपर जो सोलन टिप है उसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के बाद नीचे से एक थिन स्टॉक आ रही है जो कि नीचे तक जा रही है, दैट इज़ स्टाइल। और जो सबसे नीचे का सोलन पार्ट है दैट इज़ ओवरी। In the ovary, many ovules are present which ripens into seed. The ovary ripens and is converted into food. Ovary के अंदर बहुत सारे ovules होते हैं जो कि राइप होकर सीड में बन जाते हैं। उसके बाद ओवरी भी जो है वो राइप हो जाती है और उसको कन्वर्ट कर देती है फ्रूट के अंदर। The fruit of brassica is a long dry capsule। जो ब्रासिका का फ्रूट है वो एक long dry capsule है। Now look here, this is the flower of brassica। You can see that this is pedicel, that this is the part sepal, that is the male part, anther and filament, and these are the 4 petals, and this center part is the female reproductive part gynoecium। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यहाँ पे मेंशन हुआ है। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टैमिन को भी जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। नाउ आई एम शोइंग यू वन मोर पिक्चर। दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन, या आप LSP कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, नॉट ट्रांसफर। दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ब्रासिका फ्लावर। हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द सेपल, दो इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये कट हुआ है। उसके बाद दीज आर द पैटल्स, दीज आर कैलिक्स, कोरोला। ये जो आपको 4 साइड पे नज़र आ रहे हैं एंड्रोशियम एंड द सेंटर पार्ट इज़ गायनोशियम। ये है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर और फिलामेंट जिसको आप कंबाइनली स्टैमिन कहते हैं। और फीमेल की अगर बात की जाए तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और उसके अंदर ये ओव्यूल भी दिखाया हुआ है। नाउ आई होप the structure of brassica flower is clear to all of you and the topic is clear to all of you. That is all for today. I hope it is clear to all of you. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.